شمالی کشیر ہندس کرناس مز لوکو طرف احتجاج انتظامیہ خلاف نعرہ بازی سادنا ٹنل تعمیر کرنچ مظاہرینو مانگ تو جموں کشمیر حج کمیٹی طرف سری نگرس مز پریس کانفرنس ساز حج وری 2023 حوالہ تلنا آمتن قدمن حوالہ ذرائع ابلاغ زان السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل گھرکلی معاملن ہند مرکزی وزیر تو بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر امت شاہن آج کرناٹکس مز اکس تقریب دوران وونمت زیدوے کانگریس حکومت طرف ملکس مز ملٹنسی تو نقصل وادس گوڑ برنو تاہم مرکزس مز بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سرکار ین پتہ ات پہ روٹ لاگنہ آمت یل زن تمو دفعہ 307 ذکر کران ون زِ مودی حکومت طرف یہ دفعہ ختم کرت جموں کشیر پورے پوٹ ملک سے ضم کرنا آمد اور میرا ایک دوسرا بھی کام ہے جو میری پارٹی کا کام ہے آپ کہو تو بتاؤ آپ کو بتاؤ کیا زور سے بولو بتاؤ ارے کہو بتاؤ کیا بھائی مجھے بتاؤ ٹیپو کے ماننے والے جے ڈی ایس اور کانگریس کو ووٹ دینا چاہیے یا رانی ابکا کو ماننے والی بی جے پی کو ووٹ دینا چاہیے زور سے بولو کانگریس یا بی جے پی اور زور سے بولو کانگریس یا بی جے پی مودی جی کے نیترتو میں راشٹر بھکتوں کی ٹولی جیسی بھارتیہ جنتا پارٹی اور گاندھی پریوار کے لیے کرناٹک کو اپنا اے ٹی ایم بنانے والی بھرشٹ کانگریس پارٹی دونوں کے بیچ میں کس کی سرکار بننی چاہیے زور سے بولے کس کی بننی چاہیے مترو ایک جنتا دل ایس اور کانگریس ایک کرناٹک کا بھلا نہیں کر سکتی کرناٹک کا بھلا جب ہوا بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آج پورے دیش کے کسان ہمارے یدیورپا جی کو یاد کرتے ہیں جب یدیورپا جی تھے تب کرناٹک کے کسانوں کا بھلا ہوا پورے دیش کے لوگ یدیورپا جی کو یاد کرتے ہیں ان کے نیترتو میں ہی بنگلور بڑھا آج مودی جی نے اس چھیتر کے اندر ڈھیر ساری چیزیں کری اور سب سے بڑی بات میں بتاتا ہوں دکشن کرناٹک والوں ایک کانگریس والوں نے پی ایف آئی کے 1700 لوگوں کو چھوڑنے کا کام کیا تھا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا نریندر مودی جی نے پی ایف آئی پر بین لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تروستھیکرن کر کے دیش ورودھی تتووں کو طاقت دینے والی کانگریس پارٹی کبھی کرناٹک کو سلامت نہیں کر سکتی آپ کے نزدیک کیرل میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا اگر کرناٹک کو سرکشت رکھنا ہے تو کیول اور کیول بھارتیہ جنتا پارٹی رکھ سکتی ہے نریندر مودی کے نیترتو میں کرناٹک کی بھاجپا سرکار ہے متروں مودی جی نے دیش کو سرکشت کرنے کا کام کیا دیش میں سے آتنکواد نکسلواد کو سماپت کرنے کا کام کیا ارے مجھے بتاؤ دکشن کرناٹک والوں یہ کشمیر جو ہے ہمارا ہے یا نہیں ہے زور سے بولو ہے یا نہیں ہے دھارا 370 جانی چاہیے تھی یا نہیں جانی چاہیے تھی یہ کانگریس اور جے ڈی ایس دونوں جب میں دھارا 370 ہٹانے کا بل لے کر کھڑا ہوا کہ مت ہٹائیے میں نے کہا بھلا کیوں نہ ہٹائے بھائی بتاؤ تم نے کہا کشمیر میں خون کی ندیاں بہہ جائے گی ارے کانگریس والوں راہل بھائی سن لو یہ نریندر مودی سرکار ہے خون کی ندیاں چھوڑو کسی کا کنکر چلانے کا بھی ہمت نہیں ہوا کنکر چلانے کا اور مودی جی نے
5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट बना देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने। शुमाली हंद जिले कुपवारिस मज ये शीन पेन पत साधना करना वत पतमो कईयाह दो पे आमद रफ्त बापत बंद कर आम तज आज मुकामी लूको तरफ एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत युदवे वात बंद सपदन किन मुकामी लूकन कईयाह रंगो मुश्किल वेतरन पेवान ताहम इंतजामिया तरफ तीन मुश्किल दूर करने हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत ये जन मुकामी लूको तरफ वन आव युदवे कईयाह फिर मरकजी सरकार साधना टनल तमीर करने मांग करना आई युद्ध जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपद ताहम मरकजी सरकार तरफ ते अत कुन कह खास जोन दिन यवान। आज जो हम लोग ये जमा हुए हैं, हमारी एक जेन्युइन डिमांड है जो काफ़ी अरसे से हम एक डिमांड रखते आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, साधना टनल की कि जो साधना टनल है वो हमें मिलनी चाहिए। अभी भी हमारी डेड बॉडीज़ जो हैं, डेड बॉडीज़ पिछले 5 दिनों से डिकम्पोज हो रही हैं, हंदवारा में है वो, उनको लाने के लिए कोई भी इकदाम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया। तो आज जो ये भीड़ जमा हुई है, लोग जो ये जमा हुए हैं, उस का एक ही मकसद है कि जो हमारी डिमांड है साधना टनल की वो पूरी की जाए, और जो हमारी डेड बॉडीज़ हैं जो जिनको अभी कोई भी इकदाम नहीं लिया गया उनको लाने का, वो जल्द से जल्द यहाँ लाई जाए। आज हम लोग रोडों पे हैं, सड़कों पे सब लोग हैं, सब घरों से बाहर निकल के आए हैं, सबकी एक ही डिमांड है कि हमारी जो डेड बॉडीज है उनको फौरन यहाँ लाया जाए। ये पिछले 5-6 साल से लगातार चलता आ रहा है। परसों भी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ बर्फ और भारी में यहाँ पे करना के लोग आके रात को 9 बजे तक बैठे रहे। फिर हमारे एसडीएम साहब ने उनको कहा कि हम आपकी जो भी डिमांड है हमने ऊपर भेज दी है, आप मेहरबानी करो कि यहाँ से मतलब इस वक्त चले जाओ। तो हमने उनकी बात मानी, चले गए कि हम लड़ाइयों पे, झगड़ों पे या किसी गलत तरीके से तो हम आते नहीं हैं। हमारी अर्ज है साधना टंडर की, हमारी डिमांड जो पिछले 40-50 साल से चली आ रही है, जिसकी मुश्किलातें तब सारी करना, सारे हिंदुस्तान, सारी इंतजामिया, सारे मिनिस्टरों को पता है। हमारी फाइल जो है नितिन गडकरी साहब के ऑफिस में हमने खुद 10 सरपंच थे, हमारे बीडीसी राज साहब थे, वहाँ पे हमने दी उनको। उसके बाद डोडा से भी उन्होंने ऐलान किया, जिसमें उनके जो पार्टी के सदर रविंद्र राणा साहब उस वक्त टंडार धाम बंगला में थे, उन्होंने यहाँ पे मतलब ढोल भी मारा और कन्ना के लोगों को भंगड़ा भी खिलाया कि आपका टेंडर नितिन गडकरी साहब ने सैंक्शन कर दिया। हम बड़े खुश हुए और कहा कि मार्च में आपका काम मार्च में शुरू हो जाएगा। लेकिन वो मार्च भी चली गई, वो सीजन भी चले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं देखा। पिछली बार एक बार दो हमारी डेड बॉडियाँ हुई, हमारी इंतजामिया बीकन और अपनी आर्मी ने मिल के रेस्क्यू ऑपरेशन करके यहाँ पे लगाया। हमारे केएस अफसर साहब जो थे उन्होंने डेड बॉडियाँ खुद उठाई, लेकिन उसके बाद कुछ 2-3 दिन गुजरने के बाद फिर बर्फबारी हुई और फिर हमारी 2 डेड बॉडियाँ और होगी। उनको भी बड़े तरीके से उन्होंने मतलब रास्ता खोल के इमरजेंसी, उस वक्त 6 फुट बर्फ थी, यहाँ पे पहुँचाई। लेकिन उसके बाद हमारी 2-3 डेड बॉडियाँ इस वक्त हंदवाड़ा में और पड़ी हैं जो पिछले 5-6 रोज से। और उसके बाद ये 2 दिन तो मौसम खराब था, बीच में पहले 2-3 दिन मौसम हमारा साफ भी था, और उसके बाद आज फिर 2 दिन हमारे मौसम जो है साफ है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से इस वक्त तक हमारी डेड बॉडियाँ टंगडार नहीं लाई। उसी लिए लोग सारे निकले हैं कि हमारी डेड बॉडियाँ जो है वो टंगडार में पहुँचाई जाए और हमारे टेंडर का काम फुल पे लगाया जाए। और हमारे डीपीआर जो है, हमने पिछले 40 साल से सुनते आए हैं कि आपका डीपीआर बन रहा है, लेकिन वो हमने देखा नहीं, बना कहाँ। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर हज कमेटी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत, यथ दौरान कमेटी हज चेयरपर्सन सफीना बेगन हज 2023 हवाल तफसीलात फराहम करान वोन जे मरकजी वजारत हज तरफ यम वरी कईया अहम फैसले निन आमुत, यम सत न सिर्फ अजमन राहत वात बल्कि हेकन ज्यादा खोत ज्यादा लूक हज सादत हासिल कर। जैसे कि आप जानते हैं कि हज पॉलिसी जो है 2023 जो है वो आ चुकी है, और इस हवाले से मैंने आपको यहाँ तकलीफ दी। अभी गाइडलाइंस का हमें इंतजार है। मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनके कहने के मुताबिक 1-2 दिन में जो है गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। कुछ चीजों का तो आपको मालूम ही है, जिसके लिए हम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि
जिस पर्पस के लिए लोग जाते हैं हज पे, वो तो एक अलग ही किस्म का अकीदा रखता है। तो इसमें जो वीआईपी कल्चर था, ये वीआईपी कल्चर खत्म किया आज की गवर्नमेंट ने, उसके लिए मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कोटा होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, इसी तरह मिनॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं उनका होता है, एमपीज का कोटा होता है, तो वो खत्म करके आम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी जो है राहत है। मुझे लगता है तकरीबन उससे 5,000 जो है, 500 की 500 टोटल नहीं है, तो उससे आम लोगों को फायदा है। तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। इससे मजीद जहां तक जम्मू कश्मीर का है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। आप जानते हैं कि ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें तकरीबन 80% जो है बाकी स्टेट्स में होता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसका आपको मालूम होगा। हाँ, इसी तरह हमारा जो है बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसमें हमें कुछ एडिशनल कोटा मिल जाता है। अगर जनरली देखा जाए तो तकरीबन 6,000 तक जाएगा, फिर अगर उसको ऐड किया जाए तो 2,000 तक जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 10,000 की फिगर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इस साल। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। एक तो ये चेंज है जो इन्होंने नई चीज इंट्रोड्यूस की है इस पॉलिसी में। कल कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगी अपने साथियों को कि जब लास्ट टाइम हम मीटिंग के लिए गए थे, जब ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए थे, ये चेयरपर्सन्स और ऑफिसर्स बुलाए गए थे वहां पर अपने अपने सजेशंस रखने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या सजेशंस रखे। लेकिन जो कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तब्दीली तो ये आई है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी लेडी ने अगर हज ना किया हो तो और उसके हस्बैंड ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज किया हो, नॉर्मली जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज करते हैं उनको दोबारा हज करने की इजाजत थ्रू दिस प्राइवेटली वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इस सिलसिले से नहीं कर सकते, हाँ थ्रू गवर्नमेंट मॉडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाइफ ने ना किया हो तो उसको हस्बैंड जो है जा सकता है, हस्बैंड या कोई रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव होगा, यानी या दूर दराज कोई कजन होगा जो क्लोज रिलेटिव होगा वो जा सकता है, तो महरम जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी तब्दीली है, ये इन्होंने किया है, इस चीज को रिलैक्स किया हुआ है। वुमन कैन परफॉर्म ए हज अगर वो अकेले भी जाना चाहे। I will come to that point. I will come to that point. That's the second point, you know. So ये वो है कि सपोज अगर किसी लेडी के हस्बैंड ने किया है लेकिन वाइफ ने नहीं किया है, वाइफ जाना चाहती है, तो नॉर्मली तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको अलो नहीं करेगी, लेकिन अगर औरत ने नहीं किया है तो हस्बैंड भी जा सकता है, भाई भी, महरम जो है वो जा सकता है साथ। एडिशनल थोड़े एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, नॉमिनल होगा, जो भी होगा नॉमिनल होगा। उसके बाद ऑनलाइन किया है इन्होंने एप्लीकेशंस को। आपको पता है पहले जो फीस हुआ करती थी 300 लिया जाता था नॉर्मली, आज इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और आपके थ्रू मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो आप जो है यहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं, हज हाउस से भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है आपको। पहले 300 रुपीज भरते थे। इसके बाद जैसे पहले जो औरतें थी उनके साथ जरूरी था कि कोई मर्द जाए, हस्बैंड भाई जो वो जाए, लेकिन अब 45 साल एज जो है उससे ऊपर अगर औरतें ग्रुप में जाना चाहती हैं तो 4 औरतों का ग्रुप जो है वो जा सकता है, एज ग्रुप भी वो जा सकती हैं, तो किसी महरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तब्दीली आई है इसमें। एक वेबसाइट है जो कि यहाँ शेयर करेंगे और मैं अपने ट्विटर पे भी डाल दूंगी, उसमें www.hajcommittee.government.in आप इसे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि जो तारीख जो है आई थिंक वो 10 तारीख है, लास्ट 10 मार्च, तो इसलिए लोगों को जो है इसमें करना चाहिए। साथ में अगर किसी को पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे उस चीज को एक्सपेडाइट करने के लिए। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है पासपोर्ट का, एक्सपायरी हो, किसी का एक्सपायर हो, किसी का रुका होता है, यू नो कई सारी चीजें होती है, वेरिफिकेशन के लिए होता है, या किसी की डेट वो एक्सपायर हो गया है, तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, उनकी मदद यहाँ पे हो सकती है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज हैं जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो है जो 70 साल से ऊपर हो। आपको याद होगा लास्ट ईयर कोविड की वजह से एज का कुछ इशू था कि क्या एज थी तो किस तक जा सकते थे, 60 तक, लेकिन इस बारी जो है ऑब्वियसली अनलिमिटेड है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर 70 अबव उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसमें पूरा नहीं होगा।
इसके बाद नंबर 2 जो है सेकंड लिस्ट में जो आता है वो लेडीज आती है, फिर विदाउट दिस जिसका महरम ना हो साथ उसको नंबर सेकंड प्रायोरिटी विदाउट कुरा होगा, देन कम्स द जनरल कैटेगरी। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको। पहले आपको पैसा देना पड़ता था, प्राइवेट लैब जाना पड़ता था टेस्ट के लिए। अब मुझे लगता है आपने जो किया होगा वैक्सीनेशन, वो सर्टिफिकेट जो होगी वैलिड होगी। इससे मजीद भी अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। RT-PCR आपको पता ना कोविड के रिलेटेड है, अगर करना पड़ा तो वो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एक और चीज आपको बता दूं मैं आपको कि हमने कुछ इश्यूज रेज किए हैं जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ये था जो हमने मिनिस्ट्री के सामने भी बात रखने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी तो पिछले 3 साल तक ना कोई कमेटी थी ना कोई चेयरपर्सन था। आपको पता होगा कि 3 साल के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ। अमीनाबाद सोपरिको लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज नासाफ चनाबस हवाल कई फिर मुतलक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम इलाकस मज रोजन वो लूक कईयान बेमारिन मज मुब्तला सपद। इलाकस मज रोजन वाले लूको तरफ महकमे PHE के जिम्मेदारन मांग करना आमज इलाकस मज साफ चनाब फराहम करने सवाल गसन संजीदा कदम तुलन युत जन लूकन बथिन वो मुश्किल दूर करने से है जो सोपोर टाउन के करीब आधा किलोमीटर के वाक़े पर है। पिछले साल यहाँ पर एक ड्रेनेज उन्होंने एक बनाई नसीराबाद मेन रोड में से सर जी, जिसकी वजह से हमारे जो वहाँ से मेन पाइप आ रही है वाटर पाइप, वो इसी ड्रेन के नज़दीक और कुछ पाइपें ड्रेन में से उन्होंने गुजर रही है, जिसकी वजह से कहीं कनेक्शन में लीकेज जो है और जो गंदा पानी है, और जो महल्ले के सब नसीराबाद में इसमें ट्रंच इसी ड्रेन में चल रहा है, और जो ट्रंच का पानी है वो हमारे अब घरों में आ रहा है। हम आपकी वसत से हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि इसमें से जल्द हमारे लिए कुछ किया जाए। बाकी वसत अमीनाबाद नसीराबाद खन खतर हम आब पाइप अथ ड्रेन मज ड्रेन हूं आब गसान लीक सोरे पाइपन मज, यानी पेशाब अथन मज ठीक पे असल पे वुचान इस पे आब मच मज रटान नच तल रटान तथ खसान और ग्रख साबन तथ साबन पे जरूरत कि तूत पिछला बाना अत सान बना कर कलन आब बना त्रावन अतन बना आब त्रावन मस्जिद वाल मस्जिद नारा अकिस नफरस पेशाब आमुत वोटस पे मज, यानी तूता गए खराब खराब बेमार सोरे महल अड़न लगे दस्त अड़ गसान मजलूस अड़न खोख अड़न द्रोख। यह वन तो PHE दफ्तर वालन गसान तुम गौर अत कर कि तुम दपा फोन आ नेमन द्रोट नेमन त्रो तुम लगे पन्नस लोह लग सोन मतलब दित आब साफ तो पाक। अगर तुम ड्यूटी तुम क्या अत कर गौर अत पाइप बदल हम गंद पाइप मज त्रोक ओत्र आब बे आब तुथु गो पर जून पे आब। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।